પ્રધાનમંત્રીએ લોકાર્પણ કર્યા બાદ પ્રથમ વખત આઈએનએસ સુરત જહાજ ગુજરાતમાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત આઈએનએસ સુરત 2 દિવસ હજીરાના અડાની પોર્ટ પર રહેશે. યુદ્ધની તણાવભરી સ્થિતિ વચ્ચે ભારતની આઈએનએસ સુરતની તાકાત લોકોને બતાવવા સુરત લાવવામાં આવ્યું છે. મિસાઇલો સાથેનું અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથેનું જહાજ કોઈપણ યુદ્ધમાં ટકરાવવા સજ્જ છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં તે ભારત પણ સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે દુશ્મનોને સંદેશો પહોંચાડી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન સાથે તણાવ વચ્ચે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ પર ઇન્ડિયન નેવીનું આઈએનએસ સુરત યુદ્ધ જહાજ સુરતના હજીરા પોર્ટ પર પહોંચ્યું હતું. તેમજ આઈએનએસ સુરતને હજીરામાં તૈનાત કરવામાં આવી શકે છે. આઈએનએસ સુરત 7,400 ટન વજનનું છે. આઈએનએસ સુરતની લંબાઈ 164 મીટર છે. આ ઉપરાંત તે 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે. તેમજ આઈએનએસ સુરત અત્યાધુનિક સુરક્ષાથી સજ્જ છે. દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની વિનંતી પર નેવીએ આઈએનએસ સુરતને મોકલ્યું છે. આઈએનએસ સુરત કેરિયર ટાસ્ક ફોર્સ સરફેસ એક્શન ગ્રુપ્સ સર્ચ એન્ડ એટેક યુનિટ્સ તરીકે કામ કરી શકે છે. આઈએનએસ સુરત પરથી બરાક 8 બ્રહ્મોસ મિસાઇલથી હુમલો કરી શકાય છે. એન્ટી સબમરીન રોકેટ વોરફોર માટે 553 મીમી 4 ટોર્પીડો ટ્યુબ્સ તૈનાત કરી શકાય છે. એન્ટી સબમરીન રોકેટ લોન્ચર, તોપ સહિતના હથિયારો પણ તેમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. 2 RBU 60,000 એન્ટી સબમરીન રોકેટ લોન્ચર્સ પણ તેના પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જહાજ પર 4 ઇન્ટરસેપ્ટર બોટની સાથે 50 અધિકારી, 250 નૌસૈનિક રહી શકે છે. યુદ્ધ જહાજ દરિયામાં 45 દિવસ સુધી રહી શકે છે. જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલ આઈએનએસ સુરતને આવકાર્યું હતું. રાજ્યસભા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા, સાંસદ મુકેશ દલાલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે આઈએનએસ સુરત પહોંચ્યું હતું. સુરત દેશનું એકમાત્ર શહેર છે જેનું નામ ઇન્ડિયન નેવીના શિપને અપાયું છે. આ ઉપરાંત સાઉથ ગુજરાત ઓફ કોમર્સની વિનંતીને ધ્યાને રાખી આ જહાજને સુરત લાવવામાં આવ્યું છે. સ્વદેશમાં નિર્મિત આઈએનએસ સુરત દ્વારા અરબી સમુદ્રની સપાટીથી હવામાં ઝડપથી ઉડતા ટાર્ગેટને તોડી પાડવાની ક્ષમતાઓનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. ભારત નેવીના ડિસ્ટ્રોયર સેમ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલથી લક્ષ્યને વિંધવાનું સફળ પરીક્ષણ પાર પાડ્યું હતું. મુંબઈમાં મઝગાંવ દોકમાં બંધાયેલું આઈએનએસ સુરત નૌકાદળનો સ્ટેલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલથી સજ્જ ડિસ્ટ્રોયર શિપ છે, જેમાં 4 મહિના પહેલા જ નેવીના કાફલા સામેલ કરવામાં આવેલું છે. આ યુદ્ધ જહાજ દુશ્મન દેશના કોઈપણ પડકારને પહોંચી વળવા માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને મિસાઇલોથી સજ્જ છે. कमान अधिकारी हूँ भारतीय नौसेना पोत सूरत का, और आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज़ है और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज़ है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ. तो जैसे आप सूरत में सूरतवासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज़ में. और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज़ पे आएँ. और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूँ उनकी. एंड वी बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए. जहाज की खासियत क्या है, थोड़ा सा ये जहाज़ भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है. चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज़ हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है. प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है. तो बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि आईएनएस सूरत जहाज़ में आया है. सूरत एट सूरत. और बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा. उसमें हमारा ध्यान नहीं है. हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज़ को खुला रखें ताकि वो आके देखें. और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज़ किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था. पहले जो हमारे जहाज़ बनते थे वो यहाँ से बनते थे. सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी. और आज के दौर में जो सूरत है इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज़ अपने में रखें. और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज़, क्लीन शिप. शौर्य जी, कितने लोग को ये लेके चल सकते हैं और कितनी दूरी तक मिसाइल्स? और तकरीबन 300 लोग के साथ हम जाते हैं. दैट हमारा वो क्रू कॉम्प्लीमेंट है. बट जब हमारे पास एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हम फ्लैग शिप भी हैं,
जब हमारे कमान अधिकारी हैं जो झंडा अधिकारी पश्चिमी बेड़े के, वो भी हमारे ऊपर आते हैं तो 50 के करीब लोग और बढ़ जाते हैं। और मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा रेंज है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है इतना बोलो। नमस्ते। INS सूरत जो आज यहाँ सूरत में पधारे हैं और हम सब लोग ये INS सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं ये धूप में, क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा INS जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि INS विक्रांत है, मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा INS सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये INS युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। तो मैं पूरा सूरत का जो अपना लोग है, सूरत नागरिक के तरह से मैं बहुत बहुत नेवी को धन्यवाद देता हूँ और अपना INS सूरत को आज वो सूरत में पधारे उनके लिए उनको और सब उनके साथ जो युद्ध सैनिक है सबको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। गोड़किया जी, इस बीच में INS सूरत का सूरत में आना क्या कहता है? ये कहने का यही है हमारा कि भाई हम कहाँ भी है, हम सक्षम हैं। ये नेवी में अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो भारत किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं कि वो जहाँ वहाँ जाके उनकी 5 जातें खड़ा हुआ, हम भारत में कहाँ भी खड़ा है, मगर हम वहाँ लोकल से कहाँ से भी उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के लीडर वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, भारत को लगातार वो लोग देख लेने की बात कर रहे हैं, खून की नदी बहा देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन नेताओं को? नहीं, उसमें क्या है, अपना गुजराती में एक कहावत है कि जो बहुत बोलता है उसके कुछ नहीं होता है, काम करना होता है, वो भारत कर सकेगा, भारत कर